I can see like really lively audience, but I don't see any noise from the audience coming, like something cheering up. Our guests have come from different cities. They are not that familiar with Delhi cold, and they have been traveling since 5 or 6 a.m., I would say. So they would need some kind of energy or appreciation from the audience as well. Let me just quickly introduce my panelists, Mr. Sachin Salunke, who is from Black Hat Syndicus, and Mr. Vinay Bansal, who is from Inflection Point Ventures. सर हमने इससे पिछले वाले जो डिस्कशन था फाइव साइड चैट उसमें हमने डिस्कस किया कि स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए व्हेन दे आर एक्चुअली ड्रीमिंग ऑफ देयर बिजनेस व्हेन दे आर ट्राइंग टू पिच देयर बिजनेस अगर उनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो. But now coming to both of you, angel investors, investors who have been in this business for more than decades, अगर आपके पास इस तरह के startup pitches आती हैं, so Mr. Salunke, I'll start with you. आप पहले क्या देखते हो? What is the first thing that actually compels you for an initial yes or for an initial no? The one thing, or probably more than one. So thank you, Chahat, for inviting us. So first things we definitely observe in that ki story should connect to us, and many times startups make a mistakes like they make extraordinary commitments, and the pitch deck was so high, the commitment was so high. So definitely it's a red flag for us, and many times they have some profitable things and they show the numbers and everything, but normally all the business depend upon single client, or all the business depend upon the one guy. So again, always it is a red flag for us. So we always avoid such kind of startups for investments. And I come to the straight point on this. If you want money, so you should follow the queue, right? And wherever there's queue, so there is a scope of innovations. You take any examples. Like I'm in investments in Singapore and South Asia from 2013. We observe many changes happens in last 10 years in India. So wherever there is queue, there was a queue outside the bank. A lot of payment aggregator comes in pictures. All neobanks comes in pictures. Similarly, you find like top of something or recharge something. There was a queue, and people come up with their concepts. So I always advise new startup people to look for the queue. Where is the queue? And how can you reduce that? So definitely this will be the game changer for them. मिस्टर बंसल कमिंग ओवर टू यू ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक स्टार्टअप में आपको ऐसा लगता है कि हाँ यू नो प्रॉबेबली दिस इज़ एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक और विजनरी और समथिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यू नो मे बी आई शुड जस्ट गो फॉर इट मे बी आई शुड जस्ट पुट इन माई मनी. आई थिंक आपने दो चीज़ों की बात करी, फ्यूचरिस्टिक और विजनरी. राइट. फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस होते हैं और विजनरी फाउंडर होते हैं. ग्रेट. तो फाउंडर्स में हम विजन देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, पैशन देखते हैं, हार्डवर्क देखते हैं, उसका पूरे पेडिग्री देखते हैं कि उसने पहले क्या डिलीवर किया है. बिजनेस में हम देखते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है कि नहीं है. राइट. सो दीज आर द टू बिग थिंग्स दैट वी विल लुक एट इन एनी बिजनेस. इन दोनों चीज़ों के नीचे 50-50 चीज़ें और हैं, but I think these are the two high level things. कोई ऐसी चीज़ जो बिग नो नो होती है when it comes to any startup pitch, not a founder, a business. मतलब business में अगर आपको लगता है कि oh, this is something which is a big no no. Maybe I should not put in my money or probably advise anyone to. I think बहुत सारे नो नो हैं, but एक सबसे बड़ा नो नो होता है कॉपी कैट. कॉपी कैट. राइट, कि ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, आप 10 साल बाद आ रहे हो. राइट. यू नो, तो अगर आज मुझे कोई बोलता है कि मैं अब एक ऐसी चीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए शायद वो नया बिजनेस होगी, नई प्रॉब्लम होगी, पर उसने देखा ही नहीं कि वो प्रॉब्लम किसी और कोई और सॉल्व कर चुका है पहले, तो देन इट बिकम्स अ नो नो फॉर अस. कोई ऐसा एग्जांपल अगर आपके सामने कभी आया हो व्हेन इट वाज अ रेप्लिका काइंड ऑफ अ बिजनेस, नॉट एग्जैक्टली सेम बट हाँ मिलता जुलता, एंड यू थॉट के प्रोबेबली आई शुड नॉट. सो मतलब देयर कुड बी मैनी एग्जांपल, राइट. अगर आज मुझे कोई बोले मैं नया ग्लास बनाने जा रहा हूँ, राइट, इस तरीके का ग्लास होगा, वाइन ग्लास होगा, मे बी यू विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज यू नो कि ग्लास इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है,
और ये ग्लास अब एक इनोवेशन नहीं है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है अब। Right. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सो देन यू विल नॉट गो बिहाइंड दैट काइंड ऑफ अ स्टार्टअप। You also mentioned about the founder कि founder को visionary होना चाहिए. Apart from being a visionary, founder के अंदर और क्या qualities आप देखते हैं when probably you have their first meeting? मतलब investors तो ऐसे कहते हैं ना, भांप जाते हैं कि हाँ मतलब ये अपने साथ साथ मेरे भी investment का बेड़ा पार लगा सकता है कि नहीं. What are the key things? तो इस एक चीज़ के अलावा 8 चीज़ें और देखते हैं हम। और इसी तरीके से हमने भारत पे में इन्वेस्ट किया था सबसे पहले, फिर हमने फिट्सो में करा, फिर मिल्क बास्केट में करा, फिर OTP में करा। तो ये 6-7 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्या लिखनी है लिख लीजिए। So that हमारी audience को भी पता चल जाएगा. पहली चीज़ हम देखते हैं एबिलिटी टू कम्युनिकेट अ विजन। जो भी आपकी विजन है, जो भी आप दुनिया बदलने जा रहे हैं, क्या बदलने जा रहे हैं, क्यों बदलने जा रहे हैं, क्या आप उसे समझा सकते हैं? अगर समझा सकते हैं तो इन्वेस्टर भी पैसा डालेगा, आपके साथ आपके एम्प्लॉयज़ भी जुड़ेंगे, लंबा जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं एबिलिटी टू वर्क हार्ड। जो वो बोल रहा है क्या वो करेगा कि नहीं करेगा, या उसने जो ज़िंदगी में बोला है वो करके दिखाया है कि नहीं दिखाया। रात को अगर 12 बजे तक बैठना है उसको और उसकी टीम को, क्या वो बैठ सकते हैं, क्या वो सातों दिन काम कर सकते हैं, क्या वो जज्बा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तीसरा चीज़ है लीडरशिप। क्या लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं? क्योंकि आप अकेले तो दुनिया नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आपके साथ लोग जुड़ें और आप उनको रख पाएँ तो आप लंबा बड़ा काम करके जा सकते हैं। चौथी चीज़ है पैशन और मोटिवेशन। क्यों करना चाहते हैं? या तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, या आपको लगता है ये बड़ी प्रॉब्लम है जो दुनिया के लिए सॉल्व करनी है, Right. तो करके जाइए। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए करने जा रहा है तो शायद लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा उसकी ज़िंदगी में उसे पैसा नहीं होगा उसके पास, तो उसको कौन पार लगाएगा, वो सोचने वाली बात है। पांचवी चीज़ हम देखते हैं कि क्या उसमें टेक्निकल स्किल्स हैं उस चीज़ को करने के जो वो करने जा रहा है। राइट, आप अपने गाड़ी ड्राइवर को एयरक्राफ्ट का प्लेन तो उड़ाने नहीं दोगे, राइट? तो चाहे वो जितना भी अच्छा आपका कार ड्राइवर हो। उसी तरीके से अगर मैं हूँ डॉक्टर पर मैं स्पेसक्राफ्ट बनाने जा रहा हूँ, जब मैं जितना मर्जी अच्छा डॉक्टर हूँ मैं स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाऊंगा, राइट? तो एज ए टीम हम देखते हैं कि टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि नहीं उस एरिया को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको AI में काम करना है तो यू शुड हैव सम इंजीनियरिंग स्किल्स इन योर को-फाउंडिंग टीम टू बी ड्राइविंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री। छठी चीज़ हम देखते हैं कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इन्वेस्टर नहीं संभालने हैं, आपको अपने कस्टमर संभालने हैं, आपको अपने वेंडर संभालने हैं, आपको अपने एम्प्लॉय संभालने हैं, आपको बोर्ड संभालना है, गवर्नमेंट संभालना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संभालना है, GST संभालना है। तो क्या आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चल सकते हैं? क्या आप सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच सकते हैं? Right. कई फाउंडर्स होते हैं सिर्फ इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं, कस्टमर के बारे में नहीं सोचते। Right. कई होते हैं सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचते। Right. इवन वर्स फाउंडर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो बहुत ही तकलीफ है, राइट? ऐसे हैं एग्जाम्पल्स. ऐसे भी फाउंडर्स मिलते हैं, मतलब मेरा हो गया तो हो गया, बिजनेस भी अच्छा खड़ा कर जाएंगे लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं देके जाएंगे, राइट? यहाँ कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे, एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो ये 5 ही चीज़ें हैं अदर देन विजन, कम्युनिकेशन, जो हम फाउंडर में बहुत क्लोजली देखते हैं। हमारे सेट पैरामीटर्स हैं, हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और सेट प्रोसेसेस हैं हम इनको इवैल्यूएट करने के लिए। राइट. मिस्टर सालुंके, कमिंग ओवर टू यू. सर ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं कि फाउंडर के अंदर हो. नाउ यू प्लीज़ शेयर कि क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो प्रॉबेबली अभी शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बट मे बी 10 years from now, 5 years from now आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है. थिंग्स दैट अ फाउंडर शुड नॉट बी हैविंग. Definitely, I can answer the questions. So, काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि फाउंडर्स फंडिंग पे डिपेंड होता है कि ये 3 years में या ये 2 साल में मुझे इतने फंड्स मिल चुका है और 3 साल में और मुझे फंड मिल जाएगा. तो ये डिपेंडेंसी वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी डेंजरस है, बिकॉज अगर नेक्स्ट फंड रेज नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगा. राइट. सबसे बड़ा. और आप जो बर्न रेट हुआ और रन रेट जो बोलते हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अगले 3 साल तक कुछ भी फंडिंग विंटर आ गया, कुछ भी इशू आ गया और यू डोंट हैव फंड्स, तो एटलीस्ट आपकी कंपनी रन होना बहुत ज़रूरी है. राइट. नॉर्मली पीपल, काफ़ी सारे फाउंडर्स को मैंने ऐसे देखा है कि अभी सेकेंड क्वार्टर में एक फंड रेज हो गया, देन अगेन स्टार्ट फॉर थर्ड क्वार्टर्स. राइट. सो आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, आप आपके क्वालिटीज़ पे फोकस करो. कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कंपनी रन होती है एंड उसका रेवेन्यू भी अच्छा है और रेवेन्यू ऑन ऑल दी डेटा एंड नंबर्स देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. हम लोग उससे मिलते हैं कि ओके आप बताओ, पता चलता है कि वो सारा रेवेन्यू एक ही डीलर से आ रहा है. राइट. या एक ही पर्सन से आ रहा है. दूसरी डेंजरस चीज़ वहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि
10 लोग होते फाउंडर्स पिच में देने आते हैं और पता चलता है कि उसमें एक ही काम का बंदा है, बाकी तो ठीक है, ओके ओके सब फॉर्मेलिटीज और पिच बनाने आ गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब ये लोग पिच भी बनाते हैं तो कभी कभी सपनों से भी ज़्यादा सपने वो लोग दिखा देते हैं। तो भी सी वी आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एंड हमको भी समझ में आता है कि ये होने वाला है ही नहीं है, तो अननेसरी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। जो अचीवेबल है वही आप शो करो, वही कन्विंस करो। राइट अगर अननेसरी कोई भी कमिटमेंट करोगे तो उसका वेस्ट है और पता चल जाएगा, आपका डेक रिजेक्ट हो जाएगा। राइट एंड जैसे मैंने बोला कि आई जस्ट वांट टू गिव अ वन सिंपल एग्जांपल्स। इन 2013 आई इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ कंपनीज इन इंडिया एंड हमने उनको एडवाइस भी किया वहाँ पे। सो बेसिकली देर इज़ अ वन कैच इन इंडिया कि माइग्रेंट्स लेबर, द सिटी लाइक मुंबई एंड पुणे और जैसे बैंगलोर, माइग्रेंट्स लेबर काफ़ी ज़्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-12 टाइम। सो वहाँ पे ऐसा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर वो लोग काफ़ी खड़े होते थे और कैश डिपॉजिट करते थे। एंड सबसे बड़ा उनका पेन होता 2 से 3 घंटे उनके चले जाते थे। सो कोई ऑप्शन नहीं था, डीजे केंद्र एंड ऑल बाद में चले आए। राइट So that time I know the couple of executive directors in the RBI that time. So I met them and asked कि ये पैसा भेज रहे तो क्या इसका कोई solution हम लोग निकाल सकते? तो उन्होंने बोला definitely निकाल सकते। They said me कि either remitter or a beneficiary should be KYC compliant. So अगर मैंने बोला उनको भेजने वाला तो KYC नहीं तो चलेगा ना आपको? They said okay. Then we put a one FD in one bank for a 50 crores, 45 करोड़ का हमने वहाँ पे limit sanctions किया, because it's a risk free, and we run one DMT model, a domestic money transfer. After that Paytm came and all other player comes, right and burning games start. So I always advise to the founder कि ऐसी कुछ चीज़ ढूंढो आप जहाँ पे लोगों का पेन कम हो जाए, आपका Problem डेफिनेटली solving हो, फ़ायदा right. हो जाएगा और डेफिनेटली वो कंपनी काफ़ी अच्छी चलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए। यस यस यस। राइट कमिंग बैक टू मिस्टर बंसल, कई बार जैसे बात हुई कि पिच हो गई, ठीक है, अभी हमने बहुत सारे ऐसे शोज़ भी आते हैं, मतलब काफ़ी कॉमन एक शो है जो ज़्यादातर आई थिंक लोगों ने देखा होगा, शार्क टैंक भी देखा है। वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन एक बहुत कॉमन देखा जाता है। यू नो देयर आर टाइम्स जब एक्सपर्ट्स भी कहते हैं यू नो दैट दिस इज़ एक्चुअली ओवर वैल्यूड, हाउ डू यू इवन कैलकुलेटेड योर वैल्यूएशन। तो ये ओवर वैल्यूएशन के किस्से आपके पास भी कभी आए होंगे? हाउ डू यू measure, how do you come across कि you know this is actually overvalued and big no? Sure. तो मतलब ये वैसे तो अकाउंटिंग का टॉपिक है वैल्यूएशन, और मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, बट अगर एक लेमैन के लिए बात करी जाए तो वैल्यूएशन कैसे समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी है, यू नो क्या ये कल 10,000 करोड़ का बिजनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। दूसरा, क्या ये फाउंडर वहाँ तक 10,000 का बिजनेस चला सकता है कि नहीं चला सकता है, कितनी तेज़ी से बन सकता है, कितनी प्रॉफिटेबली बन सकता है। तो हम देखते हैं कि अगले 2 साल या 3 साल में कहाँ पहुँच सकता है। अगर मान लीजिए आज वो शुरू कर रहा है, आज कुछ पता ही नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन इतना पता है कि 2 साल में वो 100 करोड़ का धंधा बन जाएगा या 200 करोड़ का धंधा बन जाएगा, 20-30% मार्जिन होगा, तो 100 करोड़ के धंधे को आप 300 करोड़ पे वैल्यू करोगे, राइट मान लो। तो अगर आप उसे आज 20-30 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे हो, तो आपको पता है 2 साल में 10 गुना पैसा बनेगा, राइट। तो 20 करोड़ सही है, 30 करोड़ भी सही है। तो उस वक्त कोई 50 मांग रहा है तो 50 भी सही है, क्योंकि 50 का 300 है, 6 गुना दिख रहा है 2 साल में, राइट। तो रिटर्न अच्छी बन रही है। तो वो एक बेंचमार्क हो गया आपका समझने का कि वो धंधा किधर जा रहा है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड समझे तो जितनी हर एक कंपनी एक आईपीओ जर्नी से निकलती है, राइट, उसका कईयों का तो एंड गोल होता है कि चलो एक बहुत अच्छा पड़ाव है ये। आईपीओ के बाद कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मेजर होती है, राइट, कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, मल्टीप्लाई बाय सर्टेन मल्टीपल आपका प्राइस बन जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन बड़ी क्लियर हो जाती है, राइट। लेकिन आईपीओ के पहले हम पैट का मल्टीपल नहीं देखते हैं, हम देखते हैं बिट्टा का मल्टीपल, राइट, क्योंकि उसके बीच का जो फर्क होता है वो डेप्रिसिएशन और कैपिटलाइजेशन का होता है। तो वहाँ पे बिट्टा का मल्टीपल चलना शुरू हो जाता है आईपीओ से 3-4 साल पहले। लेकिन अभी अगर कंपनी को आईपीओ को भी 10-15 साल हैं, राइट, लेकिन उसने ग्रॉस मार्जिन बनाने शुरू कर दिए हैं, तो जो वीसीज होते हैं लेट स्टेज, वो ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन देखना शुरू कर देती हैं। अब अगर कंपनी और भी जल्दी है अपने स्टेज में, तो हम उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा 40 पे खरीद रहा है, 100 पे बेच रहा है, 60% कमाता है, राइट, लेकिन नीचे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं।
अब अगर कंपनी बेच भी नहीं रही है, ग्रॉस मार्जिन भी नहीं है, तो फिर हम रेवेन्यू देखते हैं। लेकिन अगर आइडिया स्टेज है तो हम फाउंडर देखते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क ऐड होता चला जाता है, तो उस तरीके से मल्टीपल ऐड होते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है कंपनी और उसके लिए राइट पैरामीटर क्या है टू इवैल्यूएट, राइट। अगर आइडिया स्टेज पे है, जैसे हमने भारत पे कागज़ पे था जब हमने उसको फंड किया था, फिट्स ऑफ कागज़ पे था जब फंड किया था, तो उस वक्त आप फाउंडर देखते हैं और कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। राइट। अब हमने भारत पे 2018 में 18 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया, 2020 में वो 8000 करोड़ की वैल्यूएशन पे था, राइट। तो उस हिसाब से आप वैल्यूएशन समझ सकते हैं। So you became happy. Of course, one becomes happy. Yeah. Coming back to Mr. Salunke, उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया, रिस्क। ऑफ कोर्स अब चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टर के लिए हो, रिस्क है। प्लस आई थिंक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बिकॉज इट्स देयर मनी। ऑल्सो रिस्क में एकदम टेबल्स कुड ऑल्सो टर्न अराउंड। कभी अगर ऐसा होता है टेबल टर्न अराउंड, तो व्हाट डू एक्चुअली इन्वेस्टर्स डू? सीख क्या है कि एक मूवी का डायलॉग है, रिस्क लेना भी बहुत बड़ी रिस्क है, नहीं लेना भी। सो सिंपली यही है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको मूव फॉरवर्ड करना ही पड़ता है। अगर अगर 100 स्टार्टअप्स आपके पास आ गए और उसमें से आपका रेशियो 5 है और 5 में आपने इन्वेस्ट किया, सो कभी ना कभी तो टर्न अराउंड होगा ही टेबल। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैक्सिमम अगर आपने चीज़ें ऑब्जर्व भी कर ली, जैसे कि बिफोर कोविड या कोविड के टाइम्स में, आई टेल यू लाइक स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जस्ट 3 महीने पहले काफ़ी सारे टी ब्रांड्स ओपन हुए थे वहाँ पे, छोटे मोटे शॉप्स, एंड दे गिविंग द फ्रेंचाइज ऑफ 25 लाख रुपीज़ एंड ऑल। मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी फ्रेंचाइजी ली थी, काफ़ी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। कोविड में ये बंद हो गया जगह पे। सो किसी का फॉल्ट है? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग टेक केयर कर सकते कि क्या है वो जो भी फाउंडर, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका विजन है, राइटली सर सेड, एंड जितनी पॉसिबल है उतनी चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसको लिमिट है। Yes. मतलब रिस्क है तो you keep that percentage in mind. 100%. 10%, 50, like what is a safe percentage for an investor? Yeah, simply it's depend upon the size of your fund, and जैसे कि हमने if I take example of 50 millions, and if you invested so secured fund in 20-25 million, rest of the 10 you took a 80% risk. बचे हुए 10 या 5 millions पे तो हम लोग 80, 90, 100% रिस्क लेके ही चलते हैं। Right. Yes. So रिस्क पूरा है रिस्क तो है। कभी ऐसा हुआ है कि टेबल एक्चुअली टर्न फॉर यू? 100%, many times. Many times. Yes. बट उसके बाद भी लाइक एक आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ कंपनी, नहीं तो और कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो देयर इज अ कंपनी हु वाज डीलिंग इन पार्किंग, you can say the parking module, they're providing hardware and all the software for that. उसके CEO थे, उन्हें कंपनी को रन नहीं किया 3 साल तक, एंड देन फाइनली वी अंडरस्टूड कि ये पैसा वेस्ट हो रहा है। सो हमने वो कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उनको टाटा बाय बाय कर दिया हमने, और कंपनी पे नया CEO बैठा के हमने कंपनी रन की। सिमिलर वी हैपन विद एविएशंस। माय वाइफ रन वन कंपनी कॉल्ड एज एविएशंस बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। दे डीलिंग इन चार्टर प्लेन्स एंड ऑल, फिक्स विंग चार्टर्स। सो उसमें भी सेम थिंग्स हैपन्स कि 4 साल के बाद CEO टर्न आउट हो गया, जो फाउंडर था, जिसकी आइडिया थी ये, फिर हमने वो कंपनी टेक ओवर कर ली। सो जहाँ तक पॉसिबल है तो रिस्क मिटिगेट करने का हम लोग कोशिश करेंगे, बट हाथ से चला गया तो क्या करेंगे हम लोग? मतलब बट यू ऑलवेज हैड अ प्लान बी, राइट? 100%, देयर ऑलवेज प्लान बी, सी, डी, मेनी प्लान्स ऑलवेज। इट्स मतलब स्टार्टअप्स के लिए सीड A B C D होती है, बट नाउ आई गॉट टू नो के इन्वेस्टर्स के लिए भी A B C D होता है। सो एवरी penny hits, right? So if it is you are a VC, you have to answer for your family offices or where you took the funds. So everybody is answerable over there. Right. Yeah. Coming back to Mr. Bansal, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पैंडेमिक। Of course, pandemic was a game changer for almost everybody, be it an individual, be it a startup, be it a established company who has been running for decades, everything. Any particular change or a drastic transition that you have noticed in this industry, startup industry, funding industry, terminologies भी आजकल काफ़ी viral हो जाती हैं, funding winter, etc. कोई ऐसा बड़ा transition that you have seen and probably उससे कुछ plus या minus हुआ हो, positive or negative? Sure. मतलब दुनिया में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। Right. पैंडेमिक भी एक वैसा बड़ा वाला था। मैं उतार चढ़ाव को नॉर्मली एक रेड लाइट की तरह मानता हूँ ट्रैफिक पे। जब रेड लाइट होती है ना तो सारा ट्रैफिक एक जगह आके रुक जाता है, चाहे आप आगे हो चाहे पीछे हो। अब आप सब साथ हो, सब साथ पहुँच जाते हैं वहाँ पे।
जब ग्रीन लाइट होती है तो फिर वहाँ से रेस शुरू होती है, Yes. राइट? तो उसमें प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। वहाँ से जो आगे तेज़ दौड़ेगा वो दौड़ता है, चीज़ें बदल जाती हैं उस रेड लाइट पे। सो अगर मैं बात करूँ तो क्या पॉजिटिव बदला है, उस रेड लाइट से आगे कौन तेज़ी से निकला है? अब जेप्टो निकला है, Right. ब्लिंकिट निकला है, राइट? आज हम उस तरीके से चीज़ें नहीं खरीदते जैसे हम पैंडेमिक से पहले खरीदते थे। Right. इन्होंने बता दिया कि आपके घर बैठे 10 मिनट में आपको चीज़ पहुंच सकती है। Consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदला है, राइट? 3-4 चीज़ें बड़ी बदली हैं, मैं I hope our audience also agrees with it. Like, do you? राइट? अगर ये जेप्टो I can ब्लिंकिट see heads nodding heads. Yes. अगर जेप्टो ब्लिंकिट पैंडेमिक से पहले आता तो नहीं चलता, राइट? दूसरी चीज़ क्या बदली है, हमारी देश में म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स या डीमैट के अकाउंट्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। सब घर पे बैठे हुए थे, ये सब अभी उसके लिए भी हेड नॉट करेंगे. I Right. am pretty sure. सब लोग को घर पे बैठ के समझ में आ गया, अरे घर बैठ के भी पैसा बन सकता है भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। अभी जो पैसे पड़े हुए हैं, जो पेट्रोल पे नहीं लग रहे, गाड़ी पे नहीं लग रहे, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं लग रहे, बच रहे हैं, क्या करें? Right. तो पीपल स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, और सबने देखा यार इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो एफडी के इन्वेस्टमेंट से 3 गुना 4 गुना रिटर्न देती है। Right. तो आज की आप देखेंगे, आज देश का पूरा नक्शा ही बदल गया है कि कितने हमारे डीमैट अकाउंट्स आज हैं और पैंडेमिक से पहले थे। तो रेड Right. लाइट के बाद ये चीज़ें और बदली, राइट? तीसरी चीज़ आई थिंक जो हमारे दिमागों में बदली, वो ये बदली वैल्यू ऑफ लाइफ, रियल एस्टेट की प्राइसेस, घर की प्राइसेस, घर की वैल्यू पता चली, Right. राइट? फैमिली की वैल्यू पता चली। तो अब लोग कई वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम आप पहले बोलते हैं ना, पैंडेमिक से पहले मुझे जाना है, कंपनी आपको निकाल देती। आज बोलती है बोलो पॉलिसी क्या चाहिए, राइट? That's right. तो ये एक दिमाग में बदला, हमारा तरीका बदला काम करने का, हम ज़्यादा एफिशिएंट हुए, और एक घर की वैल्यू भी बढ़ी। तो इसलिए रियल एस्टेट की जो बूम आई 2-3 साल की, रेजिडेंशियल में आई और कमर्शियल में नहीं आई। Both. नहीं, कमर्शियल में नहीं आई, Commercial सिर्फ में नहीं आई, रेजिडेंशियल of में आई, course. क्योंकि लोगों को घर की वैल्यू पता चली। घर में उन्होंने घर को देखा कि अरे मेरे घर में कुछ बदलने वाला है, राइट? और बहुत चीज़ें बदली, हेल्थ केयर बहुत बदला, हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू पता चली, राइट? लाइफ की वैल्यू पता चली। सो शायद 10 चीज़ें और मैं गिना सकता हूँ, क्योंकि हम तो इसमें बहुत ध्यान से देखते हैं और इसको ध्यान से इवेल्युएट करते हैं। एक साफ एनवायरनमेंट की वैल्यू पता चली। Right. पैंडेमिक में अगर दिल्ली में ध्यान दिया हो किसी ने, मार्च अप्रैल में आपका AQI गिर के 20-30 पे आ गया था। साफ एनवायरनमेंट था, आपकी हेल्थ बहुत लोगों की बदली होगी, राइट? हम शायद भूल गए आज दोबारा उसको, लेकिन उसकी वैल्यू भी पता चली। तो आज ब्लू स्मार्ट दिल्ली में बहुत चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है, हमने ब्लू स्मार्ट में इन्वेस्ट किया 2019 में, Right. राइट? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत पूरी गेम बदल गई पैंडेमिक के दौरान। शायद 5-6 चीज़ें और, बट इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं मे बी फिर कभी, बट आई विल नॉट टेक मच टाइम हियर। आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज का नाम लिया, एंड यू आल्सो मेंशन रिमोट वर्किंग. वैसे वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता, मीडिया इंडस्ट्री, सो इट्स ओके. नहीं होता है, मैंने बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज दिए हैं टीवी पे घर बैठ के My पैंडेमिक boss, के I टाइम can't see him in the crowd. It's okay. I'll talk to him probably later for that. Coming back to Mr. Salunke, that's a touchy topic. Sir ने बताया बहुत सारी चीज़ें बदली. But now coming back to actually the metrics of investment, scalability, growth, ये बहुत बड़ा एक factor होता है, because scalability is what the Correct. founder also looks for, but more than the founder, the investor also looks for. Correct, कोई correct. ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि these you ensure कि scalability तो इस business में होनी चाहिए, and when you invest, आप क्या vision लेके चलते हो कि मतलब after 10 years I want to see this X amount, और probably after 20 years, एक investor का vision कितना लंबा होता है, और उस हिसाब से किसी founder को किस तरह की pitch prepare करनी चाहिए, खुद को कितना prepare करना चाहिए, how futuristic, कितना आगे का सोचता है एक investor? सो डेफिनेटली पहले तो फाउंडर को ना जो वो कॉन्सेप्ट्स या स्टोरीज वो बताएंगे, वो फाउंडर्स, वो इन्वेस्टर को कनेक्ट होना चाहिए. अगर कोई स्टोरी हमको कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते कि इसके बारे में सोचते हैं. अगर इमीडिएटली वो कनेक्ट हुआ ही नहीं हमको, तो फिर हम लोग उसके बारे में आगे कुछ सोचते ही नहीं है. सेकेंड थिंग्स कि कभी कभी जो फाउंडर्स क्या करते हैं ये स्टार्टअप्स वगैरह में, कि काफ़ी सारी चीज़ें एक वक्त पे वो लोग डाल देते हैं. हम लोग ये भी करेंगे, हम लोग वो भी करेंगे, ये भी करना है, 50 चीज़ें. तो उस पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है इन्वेस्ट करने के लिए. आप 4 ही चीज़ें लेके आओ और 4 ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, और वो डुएबल भी होना चाहिए, वो पॉसिबल Right. भी होना चाहिए. सो बेसिकली उसके लिए हम लोग काफ़ी फोकसली देखते हैं वहाँ पे कि ये क्या हो सकता है. जैसे कि अभी आपने यू टेक अ नेम ऑफ शार्क टैंक्स, आप काफ़ी सारे उसके एपिसोड देखो. कभी कभी तो कुछ वाहियात होती है, कुछ स्टार्टअप्स कुछ भी लेके आते हैं वो लोग, पता नहीं उनको टीवी पे आना है, इसके लिए वो लोग वहाँ पे आते हैं. तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब Right. कोई भी बता सकता है कि एक्सपांड होगा ही नहीं है.
तो बेसिकली ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करो. आई जस्ट वांट टू गिव द वन स्मॉल एग्जांपल. So, I also invested in the brand called Coffee and More. They have around 75 outlets. So they are in the casual dining. So basically they run the show कि वो लोग किसी भी टाइप का ऑफर वो लोग देते नहीं है. They said come to our place, आप खाना खाओ, एम्बियंस एंजॉय करो और घर जाओ. नो डाइन आउट, नो जोमेटो, नो स्विगी. वो लोग डिलीवरीज भी नहीं देते. उनका कहना है कि अगर ये डिलीवरीज आपके घर पे जाते जाते तो ये अगर अच्छा नहीं लगा तो आप रेटिंग हमको दोगे. तो Experience खराब हो बेसिकली यस, जाएगा। तो एम्बियंस एंजॉय करें, हमारे पास आओ. तो वो लोग किसी भी प्रकार का डिस्काउंट कुछ ऑफर आपको नहीं करेंगे. इट्स अ सिंपल कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट. दे विल सर्व इंटरनेशनल कुजिन टू यू. सो ऐसी कुछ चीज़ करो. जैसे कि मैं काफ़ी सारे फाउंडर्स को हमेशा मिलते रहता हूँ, काफ़ी समिट्स में अटेंड करता हूँ. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो विच हैपन्स इन इंडोनेशिया, सो वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट भी था. सो आई अंडरस्टैंड कि एक जैसे कि एआई है या ऑटोमेशन है, 10 लोग अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं तो और भी 100 लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे. ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर को जो ट्रेंड है पॉसिबल है वो देखेगा ट्रेंड की तरफ, बट ज़रूरी नहीं कुछ भी लेके आओगे तो उसके लिए देखेगा. That's right, that's राइट. right. एंड हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशंस के ज़रिए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल. तो कोई भी, जैसे कि सर ने बताया कि कॉपी कैट करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, और हम लोग को पता चल जाता है. And information hide Correct, करना correct. and forge करना is करेक्ट also करेक्ट करेक्ट करेक्ट. not a great idea. और क्या है कि फिर एक जगह पे आप ब्लॉक हो गए तो हर जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलने ही नहीं वाला है. Right. एंड जैसे कि आपने बोला कि एक्सपांड कैसा किया जाता है, वो बिजनेस स्केलेबल कैसा है. सो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. उनको भी पता है, हमको भी पता है ये स्केलेबल होगा या नहीं होगा. Right. तो दैट्स इट. लाइक आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रेट कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने मत जाओ. जो भी है डेक सिंपल रखो, नंबर्स छोटे रखो बट सिंपल रखो. एंड एग्जाम्पल भी ऐसे बताओ कि वो हमको स्पीच नहीं लगना चाहिए. जस्ट आप जो भी करना है आपको बहुत मेड अप ना हो. यस यस यस. Right. कभी आप ओपन करो, कुछ कुछ डेक ऐसे होते हैं कि जैसे ओपन फर्स्ट स्लाइड में आपको चांद तारे नजर आएंगे फर्स्ट स्लाइड पे. सो कोई लॉजिक नहीं उसका. Right. Yeah. Again, that overvaluation Yeah, thing also yes, comes. yes. Coming back to Mr. Bansal, startups के usually they have this set of fixed set of challenges. बहुत सारे challenges होते हैं, बहुत सारे तो fixed होते हैं. तो क्या इस तरह के कोई fixed set of challenges investors के भी होते हैं? If there are, then kindly share so that startups and a few investors would also get to know. You always think that grass is greener on the other side. So share your story. आई लाइक, मतलब हिंदी में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बात बताना कि आपको याद भी रह जाए और समझ भी आ जाए. राइट. रेड लाइट की हमने बात करी. तो स्टार्टअप्स बच्चों की तरह होते हैं और इन्वेस्टर्स पेरेंट्स की तरह होते हैं. बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको पता है, जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है वो भी पता है. बच्चों को लगता है जब हम बड़े हो जाएंगे ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कोई नहीं होती. राइट. तो अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स बच्चों की तरह होते हैं तो बिहेव भी बच्चों की तरह करते हैं. कुछ जाके फोड़ देंगे, कुछ जाके कंप्लायंस में गलती कर देंगे, कभी रेड लाइट जंप कर देंगे, कभी पेपर ढंग से नहीं करेंगे, कभी इन्वेस्टर्स को टाइम पे डेटा नहीं देंगे, कभी कुछ ऐसी डील करके आ जाएंगे लॉस मेकिंग कि कभी अपनी दोस्त नहीं संभाल पाएंगे, कभी अपने एम्प्लॉयज नहीं संभाल पाएंगे. Co-founders. There are times Co-founder नहीं बहुत सारे संभाल co-founders पाएंगे. होते हैं या दोस्तों से लड़ाई हो जाती है बच्चों की. Right. तो ये सारे प्रॉब्लम स्टार्टअप्स के होते हैं. माँ बाप के क्या प्रॉब्लम होते हैं, सुनते नहीं है. अरे मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस मॉडल तेरा नहीं चलेगा, पिवट कर ले, इधर चलेगा. सुनेंगे नहीं. अब वो प्रॉब्लम तो हमारी है यार, हमारे पैसे लगे हुए हैं. राइट. दूसरा, यू वांट देम टू स्टडी कि यार डू गो एंड लर्न दिस एरिया दैट विल हेल्प योर बिजनेस. They don't want to go and they want to do their own stuff. because they're founders. Right? They are founders. We have to let them run their show. Yeah. Right? We know they're going wrong, but you let them. We have to let them do right. Third is they don't care about you. They don't care about So, you. so the biggest pain is when a founder starts thinking only for himself and not about the investors. I hope there are a lot of founders in the audience and Right? Especially when they become large or they become more arrogant. Adolescent age में जब बच्चे आ जाते हैं, right? They don't phases think of life. phases of life. Yes. That's another problem of investors. Right now they've stopped listening to you and they don't even care about investor returns. And when the investors don't get returns,
they can't fund other founders, Right. right? If you have a bad experience from returns, you will not go and invest again. So the whole startup ecosystem goes down, Stuck with each other. right? So these are some of the things, that investors face as challenges, but I think many more, just like parents have many more, but that's generally the case. Right. My last question to you, Mr. Salunke, जैसे इन्होंने बताया कि we actually get stuck. क्या ऐसा कोई तरीका होता है where an investor finds a smooth exit, fire exit की तरह आप निकल सकते हो? मतलब is there a way out? It's a depend upon situation. Yes, there are many way outs. Like जैसे कि अगर वो कंट्रोल में है स्टार्टअप्स एंड हमको पता है हम लोग इसको पिवट कर सकते हैं या होल्डिंग्स हमारी ज़्यादा है, वी कैन टॉक विद अदर इन्वेस्टर्स एंड दे ऑल्सो अगर हम लोग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है yes, नहीं है तो yes, फायर एग्जिट कहाँ yes, कब? yes. सो लाइक आपको तो पता ही है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि वहाँ पे सीईओ को ही उठा के बाहर कर दिया सारे इन्वेस्टर ने मिलके, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. एक और मुझे एक बात करनी है, आजकल हमने देखा है दिस इज ऑल्सो अ न्यू ट्रेंड व्हेन स्टार्टअप्स आर ऑल्सो ब्रांडिंग देमसेल्व्स इक्वली द वे दे ब्रांड देयर बिजनेस. बहुत सारे आजकल फाउंडर्स के खुद के पॉडकास्ट हैं, मतलब ऑफ कोर्स आई एक्नॉलेज इट, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट now they are branding themselves more than they are branding their business. So do you see that like a yes or a no? Yes, we see many times here. मतलब आप उसको एक पॉजिटिव साइड में देखते हो या आपको लगता है कि नहीं, probably focus should more be on the business and not on Definitely himself or focus herself? should be more on the business, right? Because many times काफ़ी एग्जांपल ऐसे हैं कि उन्हें एडवर्टीजमेंट करना चालू कर दिया, they get paid for that. So अगर ऐसा आप करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, right? Right. So we definitely as a investor we against this. Mr. Bansal, what do you think? So दो perspectives हैं यहाँ पे. If they are creating their own brand, Yeah. and that brand will help their startup, absolutely do it. Okay. Right? मान लीजिए आप कंज्यूमर ब्रांड चलाते हैं और कंज्यूमर्स आपसे रिलेट करते हैं, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों अपनी कंपनी चला रहे हैं, then it is good. Okay. But if you're branding yourself which is not helping your company, then you're wasting your time and you're going against the interest, then you're not putting your time in the right place. Example लेते हैं, मान लीजिए मामा अर्थ, right? वहाँ पे वरुण, if he brands himself and say Right. मैं मामा अर्थ चलाता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चों को एक अच्छी ऑर्गेनिक या एक Right. अच्छी चीज़ मिलनी Yeah. चाहिए, तो जब मैं वरुण से कनेक्ट करता हूँ तो मैं वरुण के साथ मामा अर्थ से भी कनेक्ट करता हूँ, Okay. राइट? तो मेरा मामा अर्थ का बिजनेस बढ़ता है. मामा अर्थ का पूरा ब्रांड ही कंज्यूमर साइकी में बिल्ड हुआ है, राइट? उसी तरीके से जब मैं पुनीत जग्गी से बात करता हूँ ब्लू स्मार्ट में, पुनीत जग्गी इज अ इंजीनियर इन पेट्रोकेमिकल्स, बोल रहा है कि मैं तो अपनी जिस चीज़ में मेरे को इंजीनियरिंग मिली मैं तो उसको उल्टा चला रहा हूँ, मैं तो पेट्रोकेमिकल्स को आई एम सेइंग डोंट यूज इट, डोंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट बोल रहा है कि मैंने पेट्रोकेमिकल समझा है, उसका इम्पैक्ट समझा है एनवायरनमेंट पे, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल समझता हूँ, बैटरी समझता हूँ, और मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, और उस हिसाब से अपने आप को ब्रांड करता है, तो जो उसको सुनता है वो ब्लू स्मार्ट की कैब यूज़ करता है, Right. राइट? दैट इज हेल्पिंग द बिजनेस. बट अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू कुछ और ब्रांडिंग कर रहा है अपनी, और जैसे उन्होंने बोला कि अपनी कंसल्टिंग चला रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा then कोई we have a- एग्जांपल? Do you ऐसे have any? बहुत हैं. But you would not. Of course, I will not name them here. Right. But this is a general guidance to the founders how they Right. should think about personal branding. In fact, अभी मैं 2 हफ्ते पहले अमित जैन जी से मिला था कार देखो, Right. तो वो पहले अपनी ब्रांडिंग नहीं करते थे, अब थोड़ी बहुत करते हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि आई What एम changed गेटिंग, your mind? हाँ, कि व्हाट चेंज योर माइंड. ही सेड यार मैं शार्क टैंक पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को अपनी ब्रांडिंग करनी है. ही सेड मैं शार्क टैंक पे 2 कारणों से गया. एक, मैं एक इंडिया के टियर 2 फाउंडर को सपोर्ट करना चाहता हूँ, राइट? और दूसरा, मेरे ब्रांड से लोग कार देखो समझते हैं, राइट? सो देयरफॉर इट इज गुड, इट हेल्प्स माय बिजनेस, सो आई एम ऑन शार्क टैंक. Right. Right. Well, अब हम चाहेंगे कि if any audience, anybody has a question, can we have mic for the audience? Hi, good afternoon. I'm Chandini Bhardwaj. I've been a banker for the last 20 years. I wanted to ask a question to Vinay. That, as we at times attend, by virtue of family offices, we attend the pitches which come by, and I want, of late we've seen a very alarming trend that has been coming about where
people who are coming to pitch a certain idea realize that, you know, out of so much desperation over multiple failed interactions where the banks and NBFCs are not lending and they are scouting for investors to come in and invest, they pitch in a certain idea. In the course of conversation, they realize that somehow it's not clicking in, and they pitch in something absolutely tangent to what the idea that they had initially started. And, you know, it comes across as, you know, that is why I thought that, you know, from you I'll understand. From someone sitting on this side of the fence, it comes across that, you know, it's so much desperation where multiple ideas are being pitched and, you know, it's not really coming along. Because maybe the startup has become so glamorous that people realize that my age is catching up, I've lost my job, I've done a startup, I'm not seeking funding, so I have just managed to meet an investor and have to convince him to invest in any idea. And so I thought that, you know, this is something that is coming about is very alarming. And I thought that, you know, maybe I'll take your views when you hear it on the other side. How do you really perceive it, and what's the way around it? Please. So, Chandni Bhardwaj, right? That's right. Are you a That's mother? right. Yes. When a kid comes to you asking for a toffee, how do you decide? वो कुछ भी बहाने ले, पहला बहाना लेके आएगा मुझे टॉफी दे दो, आप नहीं दोगे, फिर वो दूसरा बहाना लेके आएगा टॉफी दे दो, फिर आप दोगे कि नहीं दोगे. I think it's a similar decision that we as investors or parents of startups take. Right? We have to see what is the child, you know, capable of, and what is he really deserving. If he's done his homework, he's done a good job, and he knows that he's going for a football match tomorrow and that is his goal and that he loves doing it, I'll give him a toffee. Right? Or an investment. But otherwise I will not. So it's important to know what his core value system is. Why is he doing the business he's doing? जो मैंने पहले बात की, कि you know, उसका passion और motivation क्या है? अगर passion motivation यही है ना कि I don't have a job and I need to be seen in the startup world as a founder and therefore I'm sitting in front of a investor, then he doesn't have a passion and motivation. He's doing it out of fear. And he's doing it out of no other options, and that doesn't work, right? So one, as an investor, always look at the 7-8 things on a founder. But do you see the trend coming along where multiple pitches come across to you in a same meeting where tangent businesses come by and you realize that, you know, right from foods you move to maybe something like travel and completely way off? Sure. So we do, but now over a period of time we have made processes that, you know, I don't see those. We look at about 8,000 startups in a year and we fund only about 40, right? 0.5% is what we fund. So during the early stages itself, we apply these 7-8 tests and I don't have to apply myself. So our systems and processes apply those tests and those guys filtered out far earlier in advance. So we look at maybe the top 500 in a year out of those 8,000 after all these are filtered out. So it's very much possible that's happening. But at my level, generally, you know, we don't see that. Thank you so That's much. great. Thank you. Question for Mr. Salunke, please. Can you just pass on the mic to the gentleman? Hello. I am from a chairman, Chamber of Commerce, and we are dealing with more than 100 startups. As you are already said, that networking is one of the salient feature which you want. But again, I am saying with my full confidence, which we are promoting many of the startups, where they have very less time, technological innovations, I am telling. They are so much qualified and good people who have very less time to market and network the things. So as a Chamber of Commerce, we promote them in India and outside India. There is one startup which is from Bangalore. They are IIT Kharagpur and IIT Bangalore graduate. Yes. And they are not able to get a visa for AC Milan fashion technology. We have intervened with Indo-Italian Chamber of Commerce and convinced them that they should be getting a visa. And you will be very firm to believe that after going for Milan, they get 4 crores of business in one fashion show. Okay. So the other is the DigiLeon is a technology which is funded by Videocon people, and Adhut Saab is there only. So they have again blockchain technology for making foolproof supply chain in the system. And as we are in the Chamber of Commerce, we promote them in all the top companies which are into supply chain. Okay. So my suggestions, not suggestion, my ask, what are, as you people are mainly financial people, how you measure these innovative technologies which have a far-fetched impact
on the life of the people, on the business side. So Okay. how you measure that expertise? Because they are already a innovator of last stage from IIT Kharagpur and Bangalore. Sure, sure. So, Definitely, sir. Many times we investor our expertise in some things or some technology, and in many times we seek the guidance from others. And definitely we onboard on our fund or our syndicate some like expertise people who understand this technology, and they always give us the good suggestions about these new innovations. skill making. So maybe I'll take it. So मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए. आप IPL देखते हैं या कोई मैच स्पोर्ट्स देखते हैं? कोई IPL. नहीं देखते हैं? तो चलिए, कोई भी स्पोर्ट्स का मैच देखते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली हाइलाइट्स आ जाते हैं. 1 मिनट के अंदर पूरे मैच के हाइलाइट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि 2 घंटे का मैच, 3 घंटे का, 6 घंटे का मैच है, आपको 5 मिनट में उसके हाइलाइट्स मिलते हैं. पहले वो हाइलाइट्स आपको अगले दिन मिला करते थे, अब वो हाइलाइट्स आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाते हैं. अब कोई मैनुअली तो बैठ के इस वीडियो को नहीं बना सकता है, इसको टेक्नोलॉजी से बनाना पड़ता है. वो AI की टेक्नोलॉजी होती है, वीडियो AI टेक्नोलॉजी. तो 2018-19 में जब हम ऐसी टेक्नोलॉजीज देख रहे थे तो कोई इस पर कोई फंड नहीं कर रहा था. तो एक लड़का था इंदौर का, उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई कि वो आपका पूरे मैच उठाता है, उसको रिकॉर्ड उठाता है और 2 मिनट के अंदर उसके हाइलाइट्स बना के दे देता है. अब जब हमने उसे देखा, हमें लगा यार टेक्नोलॉजी तो प्रॉब्लम तो है, अगले दिन क्यों जाए हाइलाइट्स, उसी वक्त क्यों नहीं जा सकती. प्रॉब्लम समझ में आई हमें, हम उसे टाइम्स नेटवर्क के पास लेके गए कि सर आप देखो ये प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व हो जाए तो फ़ायदा होगा क्या. तो उन्होंने बोला बिल्कुल फ़ायदा होगा, मैं अगले दिन हाइलाइट्स की जगह पहले दिन दूंगा, मेरे कोई और नेटवर्क कर नहीं पाएगा. अब ये डीप टेक था और ये प्रॉब्लम थी और हमें इसको स्केल कराना था. स्केल की प्रॉब्लम का सवाल था आपका और बाकियों से मिलाने की प्रॉब्लम थी, राइट, नेटवर्किंग की बात थी. तो उनको समझ में आ गया. तो फिर हमने उनकी सीरीज ए की फंडिंग कराई बाहर से और आज की डेट में वो विंबलडन, आज की डेट में वो IPL, आज की डेट में वो सारी कंपनी दुनिया भर में काम करते हैं. और उनकी वैल्यूएशन हमने 17 करोड़ पे हमने पैसा डाला था 2020 में. पिछले साल 40 गुना पैसा हमने इन्वेस्टर्स को वापस किया, क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम समझ पाए, उसकी टेक्नोलॉजी समझ पाए, उसको नेटवर्क में ले जा पाए और उसको स्केल दिला पाए. Great. जो आपने स्केलिंग की बात करी, राइट, तो 40 गुना पैसा इन्वेस्टर को भी वापस कर पाए 2 साल में. Great. या There's a lady in pink sari over there. She would like, I think she has a question. The lady in pink is called Dr. Shikha. Hello, Dr. I have a Shikha. I have a question, and I work at GK Consulting. We mentor startups in business transformation and make them pitch ready and also for investment ready. Great. One comment. Mama Earth's parent company logged in a loss of revenue 19 crore. Probably that would be setting the stage for revamping and jumping back. I understand you have invested in them. So your take on it? So Dr. Shikha, right? Yes. I have not invested in Mamaearth, but we talked to founders, so just to put things straight on record. But again, I'll go back to it. When you invest behind your children, they don't earn till 21 years of age. Agree. You put their money in behind their education. You put money behind their value system, behind their sports education. Because you're giving them values, you're setting them ready, and you're developing them for doing the business later. That's exactly what an investor-investor relationship is. You identify the potential early on, you identify which sports or which education or which sector he'll do very well on, and you help them develop up to that stage. उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें एजुकेशन का खर्चा जाता है, उसमें उनकी ड्रेस का खर्चा जाता है, शूज़ का खर्चा जाता है, उनकी मॉरल एजुकेशन का खर्चा जाता है. एंड देन वंस दे आर रेडी, दैट्स व्हेन दे टर्न प्रॉफिटेबल and that they start giving money back to the parents for their running, right? Parents are old by that time. So that's exactly what happens in any industry. आप कोई भी कंपनी उठा लें जिंदगी में, चाहे लिस्टेड उठा लें, चाहे रिलायंस उठा लें. One day it was a startup, one day it started in a garage, that day he needed an investment and he needed it for 10 years before it became profitable, right? आप इस चीज़ को ऐसे सोचें हमेशा. So fully agree, Vinay. Now I want to come to the second question, because we mentor a lot of startups in business transformation, making them ready for investments. But what I come across is when we take them forward to an investor, they say we are tech agnostic. और हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी को साउंड करने के लिए. इन्वेस्टर आके बोलता है कि आई एम टेक एग्नोस्टिक, मुझे आपके टेक से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने पैसे पे रिटर्न लेके एग्जिट करना है. सो एनी कमेंट्स ऑन दैट? Sure. तो
कई बार क्या होता है कि हम भी एज इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने बोला 8,000 स्टार्टअप हम देखते हैं डॉक्टर शिखा, कई स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन पता नहीं यूज़ कहाँ करनी है। तो टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम की तरफ ना बढ़ें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके फिर आइडेंटिफाई करें कौन सी टेक्नोलॉजी उसे सॉल्व करेगी। Customer discovery, you're saying. हाँ जी। Yes. तो अगर आप प्रॉब्लम्स अटैक करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए एक सही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देन इट मेक्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। No, Vinay, let me reframe. We did that. Customer discovery कराते हैं हम लोग. But financer बोलता है कि मेरे को टेक से मतलब नहीं है, मुझे बताओ मेरा पैसा कब बाहर निकलेगा. वो तो जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पैसा बनना शुरू होगा, पैसा बाहर निकलेगा। Does not a sound tech the key foundation of the startup success? It is a key foundation, but not There are other parameters as not well. when problem solution is not identified. Tech in itself is not a solution. That's There are right. many things with it. I Thank you. think Mr. Salunke also, you want to say something on this? Any question for Mr. Salunke? Yes. This is question to Mr. Bansal and Mr. Salunke both. Basically, in last couple of years, we have seen a lot of failures in the startups. And as Mr. Bansal says, कि there is a relationship with, as a parent and a child. So एक जिद्दी बच्चा भी होता है घर में जो बहुत कुछ तोड़ता फोड़ता है. उसके लिए इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि how these failures, because some of the failures are not really because of the reasons not known to them, but there are reasons in the market or political reasons and many other reasons. How do you handle those investors or those founders which you, so I need the answer from the investors. Those founders which are really failure due to some of the reasons which are beyond their control. How do you hold them? Thank you. So definitely, it's depend upon the situations, what the exact reason why they failed. You currently said like it is maybe because of the political reasons, or maybe something goes wrong. There is in last 3-4 years we have more than dozen of examples that the valuation of the startups goes almost to 20 to 20 billion, and right now they're almost zero. So again, I just when the starting of the conversation, the Vinay said many times the things is not in our control, and it is the win-win situation for both the sides. So whenever the startup might say take the education startups recently which failed out. So if you closely monitor entire the journey of their startup, you will find there is a mistake from the founder also, there is a mistake from the investor also, and just because there are multi-investors. So when there is a more than the dozens of investors, many investors who know what happens, anything, and the one biggest disaster, when the founders feel this, I am something, and if you go, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे और 4 इन्वेस्टर में लेके आऊँगा. It is alarming situations for the everyone कि ये तो स्टार्टअप फिर चलेगा ही नहीं. So ऐसे situation में see, we are the I am from the industry 10 years, Vinay may be senior to me, but definitely जो स्टार्टअप फेल हुए हैं उनके फाउंडर्स थे and whatever the investors are pretty senior for us. So उनने भी काफ़ी ट्राई किया होगा वो कंपनी बचाने के लिए या सेव करने के लिए. हार्डली कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसका पैसा डूब जाए. ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू सेव द मनी. कोई अमालगमेंट कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं टेक ओवर कर सकते हैं. जैसे कि दे कंपनी कॉल फ्री चार्ज, आई थिंक दिस रन बाय मिस्टर कुणाल. 14 के 2012-13 में वी हैव मल्टीपल रिचार्ज कंपनीज इन इंडिया. देयर आर ऑलमोस्ट 16 मोबाइल रिचार्ज कंपनी एंड 6 रिचार्ज कंपनी एंड वी रनिंग. So that time we are using such kind of concept. After 14, the Modi government came, Honorable Modi sir's government came. So it's 16 mobile companies come to the 4 or 5, and the DTS. So there is no business for recharge that time. So again, luckily that free charge was taken over by Axis Bank something, and I don't know the exact the company name. So वो तो स्टार्टअप तभी बच गया. अगर वो और 2 साल स्टेज होता तो वो भी लॉस में जाता था. सो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स. एनवायरमेंटल थिंग्स आर देयर, पॉलिटिकल थिंग्स आर देयर, मार्केट सिचुएशन इज देयर, एनीथिंग कैन बी हैपन. सर आई थिंक मेरा भी एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है. हमने काफ़ी पिछले कुछ महीनों में ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं एक
रेस लगी हुई है, IPO रेस. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फॉर द IPO इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स. मतलब ऐसा लगता है कि एक IPO का बैज मिल गया, सो येस वी आर इन द A school, or otherwise we'll be left behind. What do you think, sir? Both of you, I'll start with you. So, yeah, but currently last 3 years, 2 to 3 years, सारे investor काफ़ी ज़्यादा matured हो गए. So you can continue. Yeah. Yes. Sorry. So, currently we look for numbers. पहले तो हम लोग तो वो pitch deck पे काफ़ी पैसा दे देते थे, अभी नहीं देते. But at least हम लोग तो नहीं देते, विनय का पता नहीं. Sir, what do you think? सो IPO की रेस से पहली बात तो बात करते हैं IPO चाहिए क्यों. राइट, IPO इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपके अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको एग्जिट देना है, एंड देयरफॉर बिकॉज इट्स अ लार्ज वैल्यू नाउ एंड द ओनली वे टू डू इट इज थ्रू एन IPO. नहीं तो IPO जाने की ज़रूरत नहीं है. राइट. सेकेंड, आई थिंक वो रेस वो खुद नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कंप्लायंस आ जाती है, बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं. बट आई थिंक इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट दे हैव टू गिव एग्जिट्स टू द पीपल हु हैव put money in them earlier, और उसमें Right. कई बार पब्लिक भी होती है. राइट. सो दैट इज वाई दे नीड टू गो टू एन IPO एज अ गेट चेक टू बी एबल टू रिटर्न मनी बैक टू ओरिजिनल इन्वेस्टर्स एंड देन ट्रेड एज अ पब्लिक कंपनी. और एक स्टार्टअप और फाउंडर की लाइफ में IPO सिर्फ एक माइलस्टोन है, एंड नहीं है. Right. And the life has to continue far after that. It's a far longer life after that. IPO is just a graduation from college. जिंदगी अभी शुरू हुई है. So basically रेस में नहीं जाना है, and this is ये वैसी स्कूल और कॉलेज जैसी रेस है, so let's just stay away from it for some time at least. Well, what an insightful session it was, and I thank both the panelists and lovely questions from the audience as well.